Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to video lecture series for course number 301 Physical Geography. We are following the book Geosystems by Robert Christopherson for these lectures, and in the previous lecture we discussed few topics from chapter number 6, that is atmospheric and oceanic circulations. So let's continue with the remaining topics of chapter number 6. First, it is the upper atmospheric circulation. So up till now, the circulations which we were discussing were the part of lower atmosphere, यानी atmosphere का वो हिस्सा जो surface के करीब था. Now we are talking about that part of atmosphere, और जब हम कहते हैं atmosphere, we mean that troposphere. So troposphere का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर circulation का क्या pattern है? तो उस pattern के लिए सबसे पहली term है constant isobaric surface, and in the previous lecture we have discussed कि isobar किसे कहते हैं. isobar ऐसी line जो कि same pressure के areas को connect करें. So constant isobaric surface बनाई जाती है, identify की जाती है upper atmosphere के अंदर, and what that constant isobaric surface is. In the upper atmosphere, wherever scientists record 500 MB of air pressure, they start making an isobar to connect the 500 MB positions in the atmosphere, upper atmosphere. So as we know कि atmosphere is a dynamic thing, pressure everywhere in the atmosphere is not same. तो जब साइंटिस्ट ट्राई करते हैं कि 500 MB के प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाए और उसके अगेंस्ट एक आइसोबार बनाई जाए, तो इट फॉर्म्स ट्रफ एंड क्रस्ट एज शोन ओवर हियर इन दिस डायग्राम. इस तरह का क्रस्ट और ट्रफ और रिच की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर जगह पे आपको एक ही हाइट पे एक ही प्रेशर नहीं मिलता, इट वेरीज. सो wherever 500 MB is found in the lower height, then it is called as a trough, जिसमें लहर थोड़ी नीचे आ रही है here. फिर जहाँ पर एयर प्रेशर थोड़ी और ज़्यादा हाइट पर मिले, that is called as ridge. So this paper like thing, जो एक folding paper है, ये basically isobaric surface बनाई है इन्होंने, and that isobaric surface is just like wave of water. So in the upper atmospheric circulation, these troughs and ridges, the trough and the ridge, they define the movement of wind in the upper atmosphere. कि जहाँ पर ridge होगी, that means it has high pressure, और जहाँ पे trough होगा, it has low pressure. So low pressure के अंदर cyclonic movement होती है, यानी wind अंदर की तरफ move करती है, and high pressure में anti-cyclonic movement, that is wind moves outwards. So this is the pattern of atmospheric motion in the upper atmosphere. Now let's have a look at these symbols over here. These are the symbols which are used on weather maps, and these symbols denote wind speed at different places. So यहाँ पर you can see an interesting pattern कि calm जब होता है तो it's a circle like that, और जब wind speed बहुत कम होती है, when it's very gentle wind, then like the reading of 1 or 2 knots, वहाँ पर symbol बनाया जाता है एक straight line, horizontal straight line, just like this. And then हर 3 से 4 knot की increase पर एक line का इजाफा किया जाता है. As you can see here, ये 1 और 2 knots की रीडिंग थी. You can even see the miles per hour unit, लेकिन I feel knots more convenient, but आप miles per hour को भी देख सकते हैं. So here 1 और 2 के बाद जब 3 to 7 की रीडिंग आई है, एक लाइन का इजाफा हुआ, the half line, and then 8 to 12. Now you see for every reading there is an increase of 4 to 5 knots. ठीक. सो नेक्स्ट 4 नॉट्स के लिए क्या हुआ, यहाँ पर लाइन जो आधी लाइन थी वो पूरी लाइन बनाई गई, एंड देन फॉर अनदर 4 नॉट्स ऑफ प्रेशर, यहाँ पर आधी लाइन का इजाफा हुआ अगले में, दैट हाफ लाइन हैज़ बिकम
a full line. So these resemble teeth of a comb. कंघी के जो दाने होते हैं उसी तरह से इसकी फॉर्मेशन है. So here you see. Now one interesting pattern is that 47 knots या 50 miles per hour के बाद एक ट्राइंगल बन जाता है. आफ्टर हाउ मेनी लाइन्स? आफ्टर 1 2 3 4 and 5 लाइन. यानी कि जब पांचवी लाइन बने, जस्ट लाइक द टैली बार्स. टैली बार में जिस तरह हम 4 लाइनें बनाने के बाद पांचवी लाइन को क्रॉस करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जब पांचवी लाइन बनती है, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 5 लाइन्स वी मेक अ ट्राइंगल. सो वो ट्राइंगल, वो स्पाइक साइन शो करता है 50 के अराउंड प्रेशर को. And then after that we continue this. So these are the wind speed symbols on weather maps. Next topic is Rossby wave. These are special types of waves formed by the pressure between the polar high pressure cell एंड द सब पोलर लो प्रेशर सेल. जब इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है कि पोलर हाई प्रेशर सेल इज़ पुशिंग अगेंस्ट द लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर, और सब पोलर लो प्रेशर पुश करता है पोलर हाई प्रेशर सेल, तो उस टग ऑफ वॉर सिचुएशन की वजह से विंड की वेव लाइक फॉर्मेशन जनरेट होती है. एंड दैट वेव लाइक फॉर्मेशन एट द पोल्स और नियर द पोल्स आर कॉल्ड एज रॉसबी वेव्स. You can see here Rossby wave. Next type of circulation is the jet stream. These are fast moving winds, and these winds are generated because of the pressure by the Rossby waves. So we have two categories of jet streams. First one is the polar jet stream and the subtropical jet stream. And if you look carefully, you will see that these jet streams are flowing in at very high altitude. This is the reason the Rossby wave and the jet streams are categorized as part of upper atmospheric circulation. Polar jet stream आपको कहाँ मिलेंगे? Between above 50 degree latitude, और सब ट्रॉपिकल आपको मिलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यानी कि नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ पर आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिलेंगे. द वर्ड सब विद ट्रॉपिकल मीन्स द नियर बाय ट्रॉपिक एरियाज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द सर्कुलेशन इन द ओशन, एज द चैप्टर नेम वॉज एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक सर्कुलेशन. सो अब तक हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात की थी, अब हम बात करेंगे ओशियानिक सर्कुलेशन की. एंड ओशियानिक सर्कुलेशंस आर नॉट एज फ्रीक्वेंट एज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर चेंज आपको दिनों में, हफ्तों में, महीनों में नज़र आ जाता है, लेकिन ओशियानिक सर्कुलेशन का जो चेंज है और उसका फेस है वो कई सालों पे मुहित होता है. So those kinds of oceanic circulation make up multi-year oscillation, यानी कई सालों के ड्यूरेशन वाला oscillation. Oscillation is movement which is rhythmic, ऊपर नीचे, kind of that. So that is oscillation, and the most famous oscillation is the El Nino Southern Oscillation, जिसको कहते हैं ENSO. So the details about El Nino oscillation is mentioned in chapter number 10. So this particular frame on the screen right now is taken from chapter number 10. So El Nino develops when in the Pacific Ocean, in the western side, that is the coast area of South America, the pressure becomes higher than normal. And the eastern coast of Pacific Ocean, that is Australia, it has lower than normal pressure. As a result, the wind pattern along the equator and tropics, the wind pattern reverses. यानी कि wind जिसको blow करना था ऑस्ट्रेलिया से, जिसको मूव करना था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो wind pattern रिवर्स हो जाता है और फिर की मूवमेंट क्या होती है? टूवर्ड्स
साउथ अमेरिका। ये जो इलस्ट्रेशन है, दिस इलस्ट्रेशन शोज द पैसिफिक ओशन ओवर हियर, और पैसिफिक ओशन के दो एंड्स दिखाए हुए हैं। दिस डॉटेड लाइन इज द इक्वेटर, आई थिंक, नो दैट्स नॉट द इक्वेटर। सो दिस इज़ पैसिफिक ओशन, एंड उसके ईस्ट पर वी हैव ऑस्ट्रेलिया, एंड देन एट वेस्ट वी हैव साउथ अमेरिका। सो जनरल पैटर्न क्या है कि साउथ अमेरिका पर, लुक एट दिस पर्पल पोर्शन, यहाँ पर इट अपवेल्स। सो इस अपवेलिंग की वजह से साउथ अमेरिकन कोस्ट के अंदर फ़िशिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रिच सी वाटर आता है, जिसकी वजह से फ़िश ब्रीड ज़्यादा होती है, एंड दे अर्न मोर इफ़ देयर इज़ नो एल नीनो। बट व्हाट हैपन्स इन एल नीनो, दिस अपवेलिंग डज नॉट अकर। यहाँ पर इस अपवेलिंग को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि विंड का पैटर्न यहाँ हुआ है रिवर्स। इसमें देखिए, in the top one the wind is moving from west to east, but here the wind is moving from east to west, but suddenly it rises, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर हो जाता है वेट और टेम्परेचर हाई होने की वजह से the wind rises. as a result साउथ अमेरिकन कोस्ट पर फिशिंग ग्राउंड वैसा नहीं होता जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ड्राउट की कंडीशन आ जाती है, और सिंस द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से ममालिक इस ओशन से कनेक्टेड हैं, सो इट अफेक्ट्स द ग्लोबल क्लाइमेट एंड ग्लोबल वेदर। एल नीनो की सिचुएशन के अंदर गर्मी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, टेम्परेचर्स आर हायर, एंड रेनफॉल पैटर्न भी इरेगुलर हो जाता है, जो कि जिन इलाकों में नॉर्मली रेनफॉल होनी चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं होती, बल्कि वहाँ बारिशें हो जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली बारिश नहीं होती। सो ऑल इन ऑल इट मोस्टली कॉजेज़ ड्राउट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस इलस्ट्रेशन में भी आप देख सकते हैं, हियर नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास कोस्ट में बारिशें हो रही हैं, बट एल नीनो कंडीशन में क्या है, बारिश वहाँ हो रही है जहाँ पे बारिश हो या ना हो, उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। दैट इज़ इट इज़ रेनिंग ऑन द सी। So El Nino was named by the South American people. Spanish language का ये word है which means a boy. Here you can see El Nino means the boy child. And the reason behind naming it as El Nino, the boy child, is that कि ये दिसंबर में यानी क्रिसमस के दिनों में ये event occur होता है, and due to that they have named it as a boy child, and it is disastrous for the people of South America. Now whenever El Nino event ends, ये तकरीबन हर 6 से 7 सालों में, या एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि 10 सालों बाद या 12 साल बाद, बट ड्यूरिंग द लास्ट 50 years एल नीनो के इवेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट रहे हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि एल नीनो का जो रेंज है दैट ranges from 2 to 12 years. It might occur in 2 year or 3 year or maybe even 12 years. और एल नीनो का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है, और अगर हम अपने रीजन की बात करें, दैट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज़ द सब कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पर एल नीनो इफेक्ट की वजह से ड्राउट की कंडीशन हो जाती है और टेम्परेचर्स हायर देन नॉर्मल होते हैं। द रिसेंट एल नीनो इवेंट वी फेस्ड वाज इन 2015, जब कि थोड़ी ड्राउट वाली कंडीशन थी और टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहे उन दिनों। नाउ एल नीनो के साथ एक और कंडीशन आती है राइट आफ्टर द एंड ऑफ द एल नीनो, एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज ला नीना। सो पीपल कॉल ला नीना एज एल नीनोज कज़न, ऑल्दो इनका कोई कज़न रिलेशनशिप नहीं है, दे जस्ट कम वन आफ्टर अनदर, और मे बी व्हेन दे हैव टू नेम, one was named as El Nino, the boy, so other must be named as the girl. Maybe that's why it is named as the girl. So there is no apparent reason for that. बस उन्होंने ला नीना नाम रखा जिसका मतलब है लड़की, a girl. And the major difference between El Nino and La Nina is that El Nino is very strong. It has greater global impact up to larger area, जबकि La Nina इतना strong नहीं होता. It's weaker compared to El Nino. So that was a brief overview of El Nino and La Nina, जिसमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एज वेल एज ओशियानिक सर्कुलेशन दोनों का रोल शामिल था।
एंड एल नीनो और ला नीना जोग्राफिकल स्टडीज़ के अंदर, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द weather and climate, these are very important because they play vital role in defining the global climate and the global weather, because they take place in the largest ocean of the world. Now the next type of oscillation is the North Atlantic Oscillation, and as the name itself is explaining कि ये Atlantic Ocean के नॉर्थ में होने वाला oscillation है या oceanic circulation का पैटर्न जो कि फ्लक्चुएट करता है. सो जिस तरह से एल नीनो में स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट था, प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा था, और ला नीना में प्रेशर ग्रेडियंट कम था, इसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन के भी दो फेजेस होते हैं, पॉजिटिव फेज़ एंड द नेगेटिव फेज़. पॉजिटिव फेज़ के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ द हायर प्रेशर इज़ हायर देन नॉर्मल एंड द लोअर प्रेशर इज़ लोअर देन नॉर्मल. तो फिर रेंज ज़्यादा हो जाती है, एंड व्हेन द रेंज इज़ मोर द प्रेशर ग्रेडियंट इज़ मोर. डिफरेंस ज़्यादा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है. सो व्हेन द ग्रेडियंट इज़ मोर इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव फेज़ ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन. सो दिस इज़ द पॉजिटिव फेज़. और नेगेटिव फेज़ के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट इज़ लेस और वीक. और उसकी क्या सिचुएशन है, जब प्रेशर हाई प्रेशर जो है नॉर्मल से लो हो और लो प्रेशर नॉर्मल से हाई हो, तो डिफरेंस उसका कम हो जाता है. व्हेन द डिफरेंस इज़ लेस, pressure gradient is less. When the pressure gradient is less, the force is weaker. Next type of oscillation is Arctic oscillation, और इसके भी दो phases हैं, positive phase and the negative phase. और पॉजिटिव फेज़ में वही चीज़ के प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, और नेगेटिव के अंदर डिफरेंस कम है. पॉजिटिव फेज़ ऑफ आर्कटिक ऑसिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वार्म फेज़, और नेगेटिव फेज़ को कहा जाता है cold phase. Next type of multi-year oscillation is Pacific Decadal Oscillation, the oscillation which takes place after every 10 years. Decade means 10 years. 10 साल का अर्सा, एक दिहाई, decade. So again Pacific Decadal Oscillation या PDO के भी दो phases हैं, the negative phase and the positive phase. और जस्ट लाइक द आर्कटिक ऑसिलेशन, इसमें भी नेगेटिव फेज़ को कूल फेज़ कहा जाता है, एंड द पॉजिटिव फेज़ इज़ कॉल्ड एज द वार्म फेज़. Hence every type of oscillation affects the global climate, affects the global weather, और इसी से मौसम की तब्दीली और आबो हवा की तब्दीली भी इन्हीं ऑसिलेशंस की वजह से होती हैं. So that was an account of different types of oscillations. Now let's talk about local winds. So local winds की पहली type है land and sea breezes. वो हवाएं जो ज़मीन से समंदर की तरफ और समंदर से ज़मीन की तरफ ब्लो करें. And the land and sea breezes are found in the maritime areas, coastal areas. So here are two illustrations to show the daytime sea breeze and the night time land breeze conditions. होता क्या है, दिन के वक्त समंदर की हवा ज़मीन के मुकाबले में ठंडी होती है. This phenomenon is related to the phenomenon of land water heating differences. During daytime excuse me for my voice. During daytime land heats up quickly and the sea it takes time to heat up. So ये वाला area relatively ठंडा रहता है, and this area is warmer. So in the warmer region the air rises. जब air rise कर जाती है तो यहाँ पे air की capacity बनती है and the wind starts moving from sea to land. और इसी वजह से इस breeze का नाम है sea breeze, क्योंकि हर type की wind का नाम हमेशा उस डायरेक्शन से या उस जगह से लिया जाता है जहाँ से वो आए. So the breeze which is coming from the sea is sea breeze. Now what is happening at night कि ज़मीन जो है वो सूरज की ग़ुरूब होने के बाद फ़ौरन से ठंडी हो गई. Link it with the phenomenon of the heating of land and cooling of land. So सूरज की ग़ुरूब होते ही ज़मीन ठंडी हो गई, और क्योंकि समंदर ने सारा दिन अपने अंदर इंसुलेशन एब्जॉर्ब की है तो the sea is warmer compared to the land. तो अब यहाँ पर
कोल्ड कंडीशन। कंपैरेटिव अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठंडी नहीं होती है, लेकिन समंदर के मुकाबले में ज़मीन सूरज के गुरूब होने के बाद वार्म होती है। सो द लैंड इज़ कोल्ड एंड द सी इज़ वार्म। सो जब समंदर की हवा वार्म है तो वो राइज़ कर जाती है और ज़मीन की हवा फिर समंदर की तरफ मूव करती है। एंड सिंस दिस विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। ये सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के फिनोमिनन हमें अक्सर सी साइड पर बीचेस पे नज़र आते हैं कि दिन के टाइम पे जब आप जाते हैं तो पानी ठंडा होता है और समंदर की जो रेत होती है, साहिल की रेत, वो गर्म होती है। इसी तरह जब आप रात में जाते हैं तो रेत ठंडी हो जाती है और कंपैरेटिवली जो समंदर का पानी है वो थोड़ा सा गर्म होता है। सो दिस एक्सप्लेन्स हाउ द लैंड ब्रीज़ एंड द सी ब्रीज़ ब्लो ड्यूरिंग डे एंड नाइट as explained in these illustrations. ये लोकल विंड्स एग्जांपल्स हैं टर्शरी सर्कुलेशन टाइप की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि विंड सर्कुलेशन इज़ ऑफ 3 टाइप, द प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो these local winds are example of tertiary circulation. So इसकी दूसरी example है, first example was land and sea breeze. Now the second one is mountain and valley breeze. Mountain breeze which blow from higher elevation to lower elevation, and valley breeze which blow from lower elevation to higher elevation. So this diagram shows valley breeze which happens during the day कि वैली की हवा वार्म हो जाती है और वार्म एयर की ये खसूसियत होती है कि इट ऑलवेज राइजेस. सो द वार्म एयर राइजेस क्योंकि वैली इज़ इन लोअर एलिवेशन, माउंटेन्स आर इन हायर एलिवेशन. सो हवा की मूवमेंट जो है वो माउंटेन की तरफ होती है फ्रॉम वैली, एंड दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज वैली ब्रीज, और ये दिन के वक्त अकर करती है. Now at night the wind direction reverses, and how is it happening? Mountain की जो tops होती हैं, these mountain tops they get cool quicker than the valley. और जब यहाँ पे हवा ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवा और कोल्ड एयर, इसकी क्वालिटी है कि the cold air sinks. So जब mountain की wind which is cold इट बिकम्स डेंस, और जब वो कोल्ड और डेंस होती है तो यकीनन वो ग्रेविटी के असर से नीचे की तरफ ब्लो करेगी. एंड सिंस इट इज़ मूविंग फ्रॉम द माउंटेन्स, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ब्रीज इज़ कॉल्ड एज माउंटेन ब्रीज. और ये माउंटेन ब्रीज आपको मिलती है रात के औकात में. एंड देर आर सम विंड्स विच ब्लो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स को दैट टाइप ऑफ विंड इज़ कॉल्ड एज कैटाबैटिक विंड, जिसमें ग्रेविटी का रोल होता है. स्पेशली फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन पे जब अगर कोई विंड जिसमें ग्रेविटी का ज़्यादा रोल है, और ग्रेविटी उस वक्त काम आएगी जब हवा की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो. सो व्हेन विंड डेंसिटी इज़ मोर एंड ग्रेविटी पुल्स द विंड डाउनवर्ड्स, और हमेशा जाहिर सी बात है डाउनवर्ड्स कहाँ पुल करेगी, जहाँ पे या तो कोई वैली होगी या माउंटेन होगा या कोई प्लेटो वाला एरिया होगा, वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हवा नीचे की तरफ चलने लगती है. सो दोस टाइप ऑफ विंड्स are called as katabatic winds. Next is Santa Ana winds. ये local wind है जो कि United States में blow करती है. And this is actually a type of mountain breeze, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका नाम Santa Ana breeze रखा है. Apart from those winds, there are some local winds जो कि किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास सीज़न में या किसी ख़ास टाइमिंग पे वो ब्लो करती हैं, जिसकी वजह से लोकल लोगों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने उन विंड्स के अलग अलग नाम रखे हुए हैं. लाइक रोन इन फ्रांस हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ विंड जिसका नाम है मिस्ट्रल, और इसी तरह से बोरा इज़ अनदर टाइप ऑफ विंड जो कि एड्रियाटिक कोस्ट के अंदर कहा जाता है. देन in Alaska there is another type of local wind which is called as the taku. I was trying to finish the whole chapter within this lecture, but I think काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो we will continue with the remaining topics in the next video inshallah. Thank you for watching.